upon the type of supply what we have, either a single phase or a three phase, or the type of control you require. Either you require a single quadrant control in IAVA plane. That means the output current and output voltage are unidirectional. And the other one is that you consider a two quadrant operation in a IAVA plane, in which you can have a voltage polarity of both possibilities, that means plus minus and minus plus on the same terminals. And the second thing is that the direction of current is again unidirectional. That means it is always into the machine. That means the output of the rectifier, अगर आप ये एग्जांपल लें, ये वाला जो आपके पास रेक्टिफायर है, तो the output of the rectifier, you can reverse the terminal polarities of the terminals of this rectifier. That means the upper one can be made plus and the lower one can be made minus or negative, and vice versa. But the direction is always outward from the source or from the rectifier. So here what you see is that you have a source in which you have in between you have a power modulator, that is actually a rectifier, a controlled one over here, a semi-controlled also in the figure B, and then it feeds the motor. Okay, the direction of current, remember, here is unidirectional. That means it is always into the machine. If the current is into the machine, in that case the machine works as a motor. ठीक है, पहली बात तो ये clear है. The second thing is that there are also possibilities of having a direction of current to be outward from the motor, outward from the machine. That means it can work as a generator in case of regenerative braking, say. So in that case, the converter configuration is to be also reversed. Okay, so that is a special case. We'll be also discussing about that, in which we require a direction change of current. That means from outward from the machine and into the source. In that case, the energy contained in the motor load system is returned back towards the source. So there are different possibilities that we either store that energy, use that energy, or at times also waste that. Okay, that will all come in the later parts of this subject. तो यहाँ पे ये बात है कि and the direction, the converter has to be also is to be properly designed for it. That means you also require a converter that can actually make a current flow from the machine towards the source. ठीक है, तो इन ये जो configurations दी हुई हैं, in this case you don't have any possibilities of reversing the current back into the source. Only you can have a change in polarity. So when you talk about motoring, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. But when we talk about braking, क्योंकि motoring में क्या है कि आपको you have to feed energy to the machine and you have a mechanical output. So the direction at times matters, कि आपको एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको एक रोटेट कराना, तो उसके लिए पोलैरिटी से हमारे पास काम चल जाता है आमतौर से. So that is why when we are into motoring mode, we never require the current to be outward from the machine and into the or onto the source side. ठीक है, so the very same thing what we have in case of three phase systems, that we have a three phase rectifier. तो ये जो मैंने पिछली बार भी बात बताई थी आपको, ठीक है, these configurations were studied by you in power electronics. Still a part of it will be described over here. ठीक है, and then the very same output response as what you get in case of just hold for a minute. Okay, the very same response what you get in case of a single phase rectifier is that you can have a reverse of polarity at the terminals of the rectifier, and the motor terminals can be reversed in terms of input feed polarity.
ठीक है. Again, the direction can be reversed using the reverse polarities, but the direction of the current is unidirectional in both the cases. That means from the source towards the load, or from the converter into the machine. That means the machine is motoring. In that case, again we have a IAVA plane operation in two quadrants. That means that mm, you can have a unidirectional current, but a voltage polarity in both the directions. ठीक है. Then you have a half control rectifier. In case of a half control rectifier, what you have is that you simply replace these by diodes. अभी इसके आगे ऑपरेशन भी देखेंगे, इनकी आउटपुट इक्वेशंस भी देखेंगे. ठीक है. तो you have these replaced by diodes. Only these are controlled switches T1, T2, T3. ठीक है. ये मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि that you can also have you represent it by thyristors, और thyristors के ऊपर जो है वो आप एक ये दिखा देते हैं गेट टर्मिनल. तो यू से दैट दीज आर कंट्रोल्ड स्विचेस. ठीक है. बट अगर आप स्विच दिखाएंगे तो दैट इज अ बेटर कन्वेंशन, बट स्टिल इन दैट केस यू विल हैव टू राइट दैट दीज आर कंट्रोल्ड स्विचेस और दीज आर अनकंट्रोल्ड स्विचेस. ठीक है. तो फॉर दैट पर्पस दोनों ठीक है अपनी जगह. अगर आप स्विच के सिंबल से इसे दिखाते हैं T1, T2, T3 को, या S1, S2, S3 दिखाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके. And you either use IGBTs, GTOs, MCTs and SICTs. ये सारे जो आपके पास switches हैं, ये सारे इस्तेमाल होते हैं depending upon the type of operation, type of current, type of voltage, type of switching frequency, type of input, what you use, type of output, what you have to produce. All these things depends upon that. और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेलिंग में आती है कहाँ पे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. स्टिल थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा इसका, जब हम इसे ब्रेकिंग में लेके चलेंगे इस चीज़ को, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन होगी ये चीज़. ठीक है. सो नाउ द थिंग इज दैट व्हेन यू हैव अ हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर ओवर हियर, तो व्हाट यू सी इज दैट the circuit becomes half the complex as compared to this one, क्योंकि इसमें 6 थैरिस्टर्स आपको कंट्रोल करने थे, इसमें खाली 3 ही थैरिस्टर्स या स्विचेस कंट्रोल करने हैं. These D1, D2, D3 are uncontrolled switches. So the complexity of the circuit is very much reduced. The second thing is that the cost is also reduced, but with the disadvantage that you only have an operation in two quadrants. ठीक है. ये आप सॉरी in a single quadrant of IAVA plane, और उसमें खाली एक पर्टिकुलर पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज जो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव ये मिलेगी, और डायरेक्शन ऑफ करंट तो ऑलवेज इनटू द मशीन मिलेगा ही. ठीक है. बट देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट. ठीक है. तो यहाँ एक चीज़ जो समझने की है मोटी मोटी वो ये है कि दैट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज फेड टू द मोटर. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे वो आउटपुट ऑफ द फीड क्या हो रहा है मोटर को, जो VA है, जो आर्मेचर वोल्टेज है, कौन सा VA, ये VA कहाँ से आ रहा है, जो भी आउटपुट का वोल्टेज है इस कन्वर्टर का, वो फीड किया जा रहा है मोटर को. तो इसमें जो भी कंट्रोलिंग पैरामीटर लगता है, अगर हम जो हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मशीन की, अगर उसमें हम इनपुट वोल्टेज की जगह इसका आउटपुट इंट्रोड्यूस करें, यानी जो इसका आउटपुट है वही मशीन को फीड हो रहा है, तो दैट विल बी एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द मशीन. यानी सोर्स से हमने जो भी आउटपुट ड्राइव किया इन दो टर्मिनल्स पे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अभी हम देखेंगे आगे चल के चॉपर में आएगा तो डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ वट एवर वोल्टेज वी हैव, दैट इज एक्चुअली फेड टू द मशीन इनपुट टर्मिनल्स. तो जो मशीन इनपुट टर्मिनल्स पे जब पहुंच जाती है वो, तो वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा कि उसे कितनी वोल्टेज मिल रही है. जैसे हमने पीछे देखा था कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में कि वी प्रोवाइडेड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिड्यूस्ड इनपुट वोल्टेज टू द आर्मेचर such that the machine characteristics are altered. ठीक है. Then those characteristics are matched with the load characteristics. So that is why we'll see that what are these outputs, and these outputs will be introduced into the speed torque relationships of those particular motors. ठीक है. देखते हैं कैसा होता है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, that is to be seen over here. So this is how it looks like.
ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, now what we have is that we have AC source rectifier, then you have a fully controlled rectifier, ठीक है, and then we have a DC motor. DC motor is represented by RLE load. ये थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने RLE लोड सुना होगा जब आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी, पढ़ा तो बहुत थोड़ा सा होगा। We'll take the analysis of it over here. First of all, how and why this DC motor is an RLE load. आपने DC में तो हमेशा R और L ही सुना होगा, E कहाँ से आ जाता है और ये L भी कहाँ से आ जाता है आपके पास। ठीक है, R is the resistance of the armature circuit, and in case of a DC, you always have the resistance of the element to be introduced into the circuit, only the resistance part. Now when you talk about LA is the inductance of the armature here. Now because आपने DC circuit analysis जब पढ़ी होगी circuit theory में, तो उसमें क्या होगा, when a switch is switched on, तो what happens is that एक DC circuit है आपके पास, एक आपने switch लगा रखा है और एक load लगा रखा है, तो what will happen is that if there is any coil or inductance in the circuit, the current does not build to its maximum value. ऐसे ही आपके पास RL सर्किट होता है, तो RL सर्किट में जो है वो करंट जो है वो वोल्टेज को फॉलो नहीं करती डायरेक्टली। ठीक है, बट होता क्या है कि एज सून एज यू स्विच ऑन, at the point of switching on, what happens is that the inductance does not allow the current to build up. ठीक है, तो it comes into picture. कब तक? up till the current builds up, और उसके बाद अगर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो वहां पे रुकी रहती है। ठीक है, तो the thing is that inductance always plays a role in a DC circuit while switching. Inductance always plays a role in a DC circuit while switching if there is some property of inductance in the load coil or load or whatever it is. ठीक है, अगर वो प्योर रेजिस्टेंस है तो उसमें ये चीज आर एल का आने का कोई चांस ही नहीं है। आर तो होगा ही होगा, एल का आने का कोई चांस नहीं है। मगर अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसमें इंडक्टेंस की है जो आप लोड लगा रहे हैं, even in a DC circuit, if you provide DC, you will always have a effect of the inductance at the time of the starting up till the current builds up and settles to a certain point. ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अगर वो शुरू में ऐसा होता है तो हुआ करता होगा, थोड़ा सा हो जाता है फिर खत्म हो जाता है तो फिर एल ए लेने की जरूरत क्या है? द थिंग इज दैट दिस source cycles itself 50 times in a second. ठीक है, and reverses itself 100 times in a cycle. ठीक है, 100 बार रिवर्स होती है, तो 100 बार रिवर्स होती है and it always starts from say 0, reaches to a maximum value, again reaches to 0, builds up again in the opposite direction to a maximum value, then again goes to 0. ये हम AC की बात कर रहे हैं। तो when there is such a change in input and this change is always seen in the output, जो आपके पास रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज होती है, जो आपने देखे होंगे ये वाले बने हुए रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज में जो VA का जो ये बना हुआ है ग्राफ तो what actually happens is that DC is not constant over here and it also even goes to 0. 0 से देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट होती है, जो अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज देखेंगे आप इस नॉर्मल रेक्टिफायर की, अभी इसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस नॉर्मल रेक्टिफायर की आउटपुट देखेंगे 0 से स्टार्ट होगी, बढ़ेगी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी AC साइकिल की। ठीक है, फिर ये 0 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए जो हाफ साइकिल के लिए फिर से दोबारा होके ऐसे होगी। तो व्हाट यू इनकाउंटर एट दीज टर्मिनल्स, ये दोनों टर्मिनल्स जो मोटर के हैं आपके पास, इज दैट there is a DC, but it is a constantly varying DC. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल तो है, डायरेक्ट करंट तो है, बट अगर हम इससे रेक्टिफायर से दे रहे हैं तो इट विल ऑलवेज हैव ए वैरिंग वैल्यू।
दो ऑफ ए सिंगल पोलैरिटी, ठीक है, यानी ऊपर ही ऊपर, लाइन से ऊपर ऊपर है तो डीसी, मगर फुल टाइम चेंज हो रही है। तो जब चेंज हो रही है तो इंडक्टेंस, एंड बिकॉज इट ऑल्सो रिवर्सेस 100 टाइम्स इन अ साइकिल, ठीक है, तो अगर 100 बार रिवर्स हो रही है तो इट इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर विच द मशीन कैन सेटल डाउन, ठीक है, टू सम zero value of inductance. So this will always, LA will always be there in the picture because of the inductance in the armature coil of the DC machine, ठीक है। RA की बात हो गई, RA होगा ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में है आर्मेचर के। LA भी होगा क्योंकि बिकॉज यू आर फीडिंग इट विद ए रेक्टिफायर। इफ इट इज फिट फ्रॉम ए कांस्टेंट वैल्यू डीसी सोर्स, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग तो LA आएगा, ठीक है, बट वो विद इन फ्यू मिली सेकेंड जो है वो गायब हो जाएगा एज सुन एज द करंट बिल्ड्स अप एंड रीचेस टू इट्स डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे LA एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग आएगा। तो जब आप डीसी सर्किट एनालिसिस करते थे तो उसमें ट्रांजिएंट एनालिसिस में जो है L आता था आपके पास, RL सर्किट जो आप कंसिडर करते थे, तो डीसी ट्रांजिएंट सर्किट में RL सर्किट आता था, तो L खाली ट्रांजिएंट में ही आता था। और फिर उसके बाद आता था एट टी इज इक्वल टू इतना टाइम, तो खाली आपके पास आर की वैल्यू ही बचती थी उस डीसी सर्किट में, बिकॉज ट्रांजिएंट एनालिसिस जब तक आपकी खत्म, ट्रांजिएंट कंडीशन आपकी जब तक खत्म हो चुकी होती थी, ठीक है ना। तो हियर इन दिस केस बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली फीडिंग इट विद ए a varying DC source, so that is why inductance is always there into the picture. So you have RA, you have LA, then you have another term E. E is there because of the back EMF of the machine, ठीक है। अब बाहर से अगर इसमें इनपुट वोल्टेज V देते हैं तो जो आपके पास अंदर जो होता है आर्मेचर में इंड्यूस वोल्टेज E हमेशा रहता है ये ऑपरेशन के लिए, वो तो एक नॉर्मल डीसी मशीन में होता ही होता है, जैसे आपको सब पहले की थ्योरी से पता है। तो दैट इज व्हाई ए डीसी मोटर or a DC machine is considered to be an RLE type of load when fed from a rectifier. ये ध्यान रखिए, when fed from a rectifier. A DC machine is considered as an RLE load when fed from a rectifier because though the DC, as the name suggests, is unidirectional, but it is constantly varying. ये जो आपके पास जो रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट होता है ये हमेशा वेरी करता रहता है। तो इंडक्टेंस आपका हमेशा पिक्चर में रहेगा, आर हमेशा पिक्चर में रहेगा, एल ए हमेशा पिक्चर में रहेगा, और ई इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की वजह से आर्मेचर सर्किट में जो हमेशा ऑपरेशन, जब भी ऑपरेशन होगा वो रहता है, तो ई भी हमारा ऑपरेशन में रहेगा एट ऑल द टाइम्स। So when you consider a DC motor to be operated from a rectifier, you consider it to be an RLE load connected to a rectifier, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई इसकी। एक चीज और है अब इसमें, दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। देखिए आपके पास व्हेन यू हैव ए आउटपुट वोल्टेज ओवर हियर, यू हैव ए करंट दैट एंटर्स ओवर हियर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, इट इज डिफिकल्ट टू शो बट स्टिल आप देखिए, इसमें थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। हम इस वाले से देखते हैं, ठीक है। यू हैव दिस आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, आपने यहाँ पे अल्फा पे से फायर किया, पीछे वाले सर्किट पे अल्फा पे फायर किया, तो आपके पास जो एसी आउटपुट वोल्टेज बनेगी, ये पूरी आपके पास हाफ सिनोसाइडल वेव थी। तो जहाँ पे आप स्विच करेंगे तो वहाँ से लेके ये स्विच होकर, और ये आपके पास ये हार्ड लाइन जो दिख रही है, ये पूरी एक सिंगल उसकी हाफ वेव का रेक्टिफाइड आउटपुट है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जब आप पाई प्लस अल्फा पे से यहाँ पे फायर करेंगे तो ये दोबारा आपको एक रेक्टिफाइड हाफ वेव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये दो आपके पास ऐसे ही आपके पास दिस रिपीट्स ऑन गोइंग ऑन।
The another thing is that when you have this output, up till now you have not connected anything to it. ये तो खाली हमने इसकी आउट, अगर आप इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट ना भी करें तो ये वोल्टेज आपको मिलेगी at the terminals as these two terminals, ये वाला और ये वाला, इन दो terminals पे मिलेगी. Now if you connect an RLE load across it, तो what actually happens? ठीक है, अगर हम जैसे ही कोई लोड कनेक्ट करेंगे, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. ये IA करंट है जो हमारे पास पीछे है. A current starts to flow. It cannot follow the output voltage because you have L into picture. ठीक है, अगर ये R होता आपके पास, सिर्फ R, आप रेक्टिफायर को R लोड पे लगाएंगे तो आपके पास जो वोल्टेज वेव फॉर्म आती है वो भी बिल्कुल इसे फॉलो करती हुई थोड़ी सी ऊपर नीचे V/R के हिसाब से जो है वो I आ जाता है. बट बिकॉज यू हैव IA in place over here, so what actually happens is that you cannot have a current that follows the voltage. In fact, you will be having a current that will be lagging behind the voltage. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो करंट जो है वो, अगर ये R लोड होता तो डायरेक्टली यहाँ से उतनी ही बिल्डअप हो जाती, बट द करंट ग्रेजुअली स्टार्ट्स बिल्डिंग अप स्लोली लाइक दिस, ऐसे करके. ठीक है, और उसके बाद अगर ये हो भी जाता है, इवन इफ द voltage goes to zero at this point, so the current won't go to zero instantly. करंट ऐसे जीरो नहीं हो जाएगी बिकॉज अगेन द एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड इन द इंडक्टर. तो जो उसने बिल्डअप करने के लिए जो एनर्जी स्टोर करी थी, दैट विल बी यूज टू टेक दिस और कंटिन्यू दिस करंट अप टिल इट रीचेज अ पॉइंट बीटा. ठीक है, आपको पता होगा अल्फा हम कहते हैं फायरिंग एंगल को, बीटा हम कहते हैं क्वेंचिंग एंगल को. ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पास करंट जीरो हो जाती है. Even if the voltage goes to zero, the current does not go to zero in case of an RL circuit when fed from a this rectifier. ठीक है, तो आपके पास करंट जो है उस इंडक्टेंस की वजह से IA जीरो नहीं होगा. ठीक है, और कुछ देर बाद जीरो होगा. इवन इफ आफ्टर दिस पॉइंट, ये आपके पास पाई है, ये जीरो है, ये अल्फा है और ये पाई है. तो पाई के बाद भी इवन जब वोल्टेज जीरो हो जाता है तो करंट डज नॉट गो टू जीरो, और ये वेव फॉर्म ऐसे करके नीचे उतर के यहाँ बीटा पे जाके जीरो हो जाती है. ठीक है, दिस इज नोन एज द क्वेंचिंग एंगल और द एक्सटिंक्शन एंगल. ठीक है, दोनों कहलाते हैं आपके पास. आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा तो याद होगा. नाउ व्हाट हैपेंस, you have another cycle, you have this motor again connected to this voltage, और यहाँ से दोबारा फिर आपके पास वोल्टेज बढ़ना शुरू हो, करंट दोबारा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी जो पहले यहाँ खत्म हो गई थी. Here you have two important points. The first thing is that the current can goes to zero at beta, and another pair of thyristors is fired at पाई प्लस अल्फा. यहाँ अल्फा पे फायर हुआ था, तो जो नेक्स्ट सेट फायर होगा वो पाई प्लस अल्फा पे फायर होगा. ठीक है, जब पाई प्लस अल्फा पे फायर होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, और वहां से करंट बिल्डअप शुरू हो जाएगा. इफ बीटा इज ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, यानी ये आपके पास करंट जीरो नहीं हुई है और उसके बाद पाई प्लस अल्फा पहले ही आ गया, यानी बीटा इस तरफ है और पाई प्लस अल्फा पहले है, तो करंट दोबारा बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, विदाउट एक्चुअली गोइंग टू जीरो, क्योंकि बीटा पहुंचे ही नहीं हम. एंड इफ इन केस बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा, यानी क्वेंच पहले हो गई करंट और जो पाई प्लस अल्फा है उस पर फायर होकर दोबारा बिल्डअप होना शुरू हुआ, बाद में हुआ, तो देयर विल बी अ सर्टेन टाइम फॉर विच यू विल बी हैविंग ए नो करंट टाइम, जिसमें सर्किट में करंट नहीं होगी, क्योंकि पहले वाली करंट जो है वो क्वेंच हो चुकी है यानी बीटा पे, और बीटा छोटा है पाई प्लस अल्फा से. वी हैव टू फिनिश, चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है. खैर, व्हाटएवर, वी विल स्टार्ट, डू इट फास्ट. तो आपके पास बीटा अगर छोटा है और पाई प्लस अल्फा से करंट स्टार्ट नहीं हो रही है, तो थोड़ा एक टाइम बचेगा जिसमें आपके पास करंट नहीं होगी. दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस करंट कंडक्शन. ऑन द अदर साइड, अगर आपके पास बीटा ज्यादा है पाई प्लस अल्फा से, यानी करंट जीरो नहीं हो पाती है,
और उसके बावजूद भी जो है वो नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाती है यहाँ से, मान लीजिए, तो what will happen in that case, that you won't be having any part of time in which the current goes to zero, and the current is continuous all throughout. So there are two modes of conduction over here. अभी हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात भी करेंगे कैसे क्या क्या होते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हेन बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा, then in that case you will be having a break of current, and that is known as discontinuous conduction mode. And when we have pi plus alpha to be less than beta, or beta to be greater than pi plus alpha, in that case the current buildup starts even before the current goes to zero, so there won't be any current drop to zero. So that is known as continuous conduction mode. ठीक है, तो दो कंडक्शन मोड्स आते हैं हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. ठीक है, तो ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वील सी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये RLE लोड होता है. ठीक है, और इसमें जब RLE लगा देते हैं तो इस L की वजह से करंट बिल्डअप जो है वो लेट होता है. और यहाँ पे जो है अगर ये फिर जहाँ ये ज़ीरो हो जाती है वोल्टेज, तो ये भी ज़ीरो नहीं होता है. ये देखिए करंट की एक सर्टेन वैल्यू है यहाँ पे, ये वोल्टेज ज़ीरो हो गई मगर करंट की वैल्यू है. It then later goes to zero, and after that what happens is that after when it is again fired at pi plus alpha, it again starts build up. ठीक है, तो एक लिमिटिंग कंडीशन भी आती है जिसमें ये दोनों बराबर पाई प्लस अल्फा बीटा के बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ जस्ट डिसकंटिन्यूअस का बॉर्डर आता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का. ठीक है, चलो, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द टॉपिक दैट इज कवर्ड टुडे? किसी को कुछ पूछना है? सर आर्मेचर करंट कंटिन्यूअस सिर्फ अल्फा टू पाई प्लस अल्फा तक होता है या फिर सर वो रिपीट भी होगा बाद में? देखो, आर्मेचर करंट हमने एक साइकिल की बात करी है अभी, ठीक है ना. ये साइकिल तो हर हाफ साइकिल के बाद आती है AC की. हाँ समझ लेकिन रहे हैं सर भाई? मान लीजिए सर ये हाँ, वाला में बस. सर बीटा अल्फा टू पाई प्लस अल्फा में बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, फिर उसके बाद एक साइकिल रिपीट होगा अल्फा प्लस 2 पाई से लेके अल्फा प्लस 3 पाई में, उसमें अगर बीटा ग्रेटर देन 2 पाई प्लस उसमें अल्फा नहीं, हो नहीं, गया. नहीं, देखो एक बार उसमें ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, अभी मैं ये बताऊंगा ये इंडक्टेंस पे, क्योंकि आप जितनी इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे उसी हिसाब से जो है ये घटता बढ़ता रहेगा. बट एक बार जब सर्किट लग जाता है और उसमें R L और ये E फिक्स हो जाता है, एक मोटर आपने लगा दिया, उसमें चूज कर लिया, ठीक है, ओके. तो उसमें फिर RL में चेंज नहीं आएगा. तो जो रिस्पॉन्स पहले साइकिल में है वही दूसरे साइकिल में मिलेगा, वही तीसरे साइकिल में मिलेगा. ओके सर, ओके, ठीक. ठीक है ना, थैंक यू. क्योंकि R और L और E की वैल्यू वही है जो पीछे है, और जो इनपुट वोल्टेज आ रही है वो भी वही वैल्यू है जो पीछे है. तो एक हमने एक या दो साइकिल्स की जो एनालिसिस कर ली, तो आगे वही होने वाला है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आने वाला है. ओके सर, थैंक ठीक है यू. ना, चलो, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू धन.